everyone. Uh, as you know that I am doing a lecture series of previous year question of polity and IR. Okay, in the last video I have completed for the 1987, and in this video I will do for the 1980 year IS prelims exam of 1980. Okay, so let's see how many questions came in this year. Fine. So the first question is, all responsibilities regarding election in India are entrusted to President, Prime Minister, Chief Justice of CJI and Chief Election Commissioner. So all responsibility regarding election in India is ensured by, it is answer District Election Commissioner. ओके, तो चुनाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसको इंश्योर कौन करता है? CEC करता है. ओके, चीफ इलेक्शन. Our next question is, in which case a joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha is convened by the president? Okay, when the finance bill is to be passed by the Lok Sabha and by the Rajya Sabha with 2/3 majority to impinge the president if after a bill has been passed by one house and transmitted to other house and the bill is rejected by the other house. Okay, so the answer of this question is C. Okay, obviously इन दोनों का ए से कोई मतलब नहीं है. ओके, ज्वाइंट सेशन का इससे भी कोई मतलब नहीं है. सी में इफ after a bill has been passed by one house and transmitted to other house and the bill is rejected by the other house. ओके, तो इस केस में हमको ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता है अगर वो बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो. ओके, ऑब्वियसली नॉट, आई विल नॉट से इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा होता है तो. ओके, ऑब्वियसली द रूलिंग पार्टी वांट्स टू pass that bill. Next question is, 44th amendment of the constitution speak of right to the property as no longer fundamental right, suspension of individual liberty during emergency, bearing the code from the inferring in the dispute regarding the election of prime minister, giving more importance to directive principle over fundamental rights. Okay, ये 44 अमेंडमेंट्स 44 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक ऑफ, इसमें से कौन बोलता है? इट्स ए राइट टू प्रॉपर्टी एज नो लॉन्गर ऑफ फंडामेंटल राइट. ओके, देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो भी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट बाद में उसको हटा के आर्टिकल 300 में डाल दिया गया. और नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस? दिस राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Finance Commission is appointment after every is B5 here. Okay, its answer is B5. Now next question is, the word secular denotes. I think if you watch the lecture year of 1979 previous year question, वहाँ पे भी secular वाला question था. Okay, so it is we can say that it is repeating. So those who have watched that video, they can solve this question very easily. Okay, so let's see what is there. Keeping away from all the religion, belief in one God, freedom of religion and worship to all citizens practicing different religions. Okay, so its answer is C. Freedom of religion and worship to all citizens. Let's see next question. What is the maximum period during which parliament may not meet? Okay, so इसका answer 6. I mean it's 6 months. 6 months. Its answer is A. Okay, इसको बस याद कर लेना, इसमें कुछ ऐसा समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ. ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपको पता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता है तो आज से पता कर लीजिए. देखिए हमारे दिमाग में जब भी पार्लियामेंट की बात आती है तो पार्लियामेंट मतलब हम ये सोचते हैं कि ना राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा, हमको ऐसा ही लगता है. ओके, बट ऐसा नहीं है. पार्लियामेंट कंसिस्ट होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. क्योंकि देखिए जैसे कोई बिल आता है तो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर
राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए। ओके, तो वो जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता है वो बिल जो है एक्ट में नहीं बनता, फिर वो लॉ नहीं बनता। ओके, इसी वजह से प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका जो आंसर होगा हमारा सी, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, सो डू नॉट कंफ्यूज विद ओनली विद लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो पार्लियामेंट तीनों चीज़ों को कंसिडर करता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल passed by Lok Sabha for the period not exceeding. Okay, अगेन अगर आप 1979 वाला वीडियो देखेंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन है। ओके, इट्स आंसर इज 14 डेज। ओके, तो कोई मनी बिल के केस में राज्यसभा 14 डेज तक होल्ड कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है। अगर वो भेज दिया तो ठीक है, नहीं भेजता है तो लोकसभा मान लेगा कि इट इज बाय द राज्यसभा, तो वो अपना एसएन के लिए भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास। मनी बिल के केस में होता है। ओके, ऑर्डिनरी बिल के केस में ऐसा नहीं होता है, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए रख सकता है। नाउ हाउ मेनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस? ओके, आईसीजे। देखिए ये आईसीजे की बात हो रही है और हम लोग किस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 1980 की बात कर रहे हैं, और हम लोग किस ईयर में है, 1923 में। ठीक है, देखिए मैंने इसका करंट स्टेटस चेक नहीं किया है। इस क्वेश्चन का उस टाइम के हिसाब से आंसर सी है, 15 जजेस। ओके, तो जो लोग भी 2023 का एग्जाम या 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज गो एंड चेक अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितने जजेस तो आईसीजे में है। ओके, वेदर इट इज स्टिल 15 है कि बढ़े हुए हैं, ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। बट ये क्वेश्चन उस समय का है, उस समय 15 जज थे। अगर ऐसा कुछ आता है उसमें 15 ऑप्शन है तो आप 15 मत मारिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि अभी भी इफ देर इज स्टिल 15 जजेस आर देयर, यू प्लीज टेक 15। if it is increased to 20 or 30 whatever, okay, so your option will be accordingly, so please take that option. Fine, do not blame me. I have I have told you for 15, I have given the explanation. Please do that. Okay, don't do this kind of. Now next question is the term fourth state refers to. Okay, it's nothing but press D. ओके, फोर्थ पिलर की बात हो रहा है ना, जैसे हमारे वहाँ बोलते हैं फोर्थ पिलर क्या है, प्रेस। अभी आई थिंक अभी करंट सिचुएशन में जो हमारे प्रेस में या न्यूज़ में जो होता है, आई डोंट कंसिडर इट एज अ फोर्थ पिलर, बट ओके हमें मानना है तो इट्स अ फोर्थ पिलर। ओके, बट अभी का जो सिनेरियो उस हिसाब से इट्स अ फोर्थ पिलर, क्योंकि न्यूज़ तो वैसे ही होती नहीं है, फालतू की न्यूज़ होती है। ठीक है, हाँ देखिए, अगर न्यूज़ की मैं बात करूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, न्यूज़ सुनने की बात है, तो प्लीज़ डू नॉट वॉच एनी ऑफ दिस प्राइवेट चैनल्स लाइक आई विल नॉट मेंशन एनी ऑफ द नेम, ओके, whoever you are liking, but you please listen the All India Radio. Okay, half an hour either in morning or evening. You please listen that one. Okay, that is more than enough. Okay, और अगर आपको डिबेट्स वगैरह में डिबेट्स के बारे में सुनना है तो आप अभी तो एनी वो संसद टीवी हो गया है, पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था, तो आप संसद टीवी को देखिए, उसमें कोई भी गवर्नमेंट से कोई भी टॉपिक्स आती है, कुछ भी कोई भी केस चलता रहता है, तो उसमें 4-5 एक्सपर्ट बैठ के बात करते हैं, उनकी बातों को सुनिए, ना कि संबित पात्रा दिस काइंड ऑफ लोगों का आपको नहीं सुनना। जस्ट गो टू द सनसेट टीवी एंड प्लीज़ लिसन दोज डिबेट्स, क्योंकि वहाँ पे हमारे जैसे मान लेते हैं कि आईआर से रिलेटेड कुछ है, तो उसमें 2 इन्वेस्टर बैठे रहेंगे, एक कोई जेएनयू का प्रोफेसर होगा, या फिर कोई या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है, या किसी कंपनी से उसका एमडी वगैरह हो सकता है, तो उसमें अच्छे लोग होते हैं, वो आपको एग्ज़ाम का मटेरियल देते हैं। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट वॉच दिस नॉनसेंस काइंड ऑफ चैनल्स, वॉच यू लिसन All India Radio and watch Sunset TV. Okay, fine. Let's see next question. Whose signature are found on the 100 rupees note? Okay, this answer is B, Governor of RBI. Next question is, who was the second president of Indian Republic? Okay,
Its answer is B, Dr. S. Radhakrishnan. ये स्टैटिक पार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा कि पहले से 10 अभी तक के कितने प्रेसिडेंट हुए, कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं, ये सब आप देख सकते हैं। फाइन, तो ये हमारा 1980 का कंप्लीट हो गया. So those who are watching this or those who have watched this, I hope you like that. Please put your comments, how many questions you have corrected and how many mistakes you have done, and please do not repeat those mistakes in the exam. Okay, thank you very much.